Good afternoon, students. I hope all of you are safe at your homes. Today, I am going to explain uh, voice representation on Unit 2, that is, the concept of probability, random variable, random processes. The table of content for this audio visual representation are given in this slide, where the first concept will be concept of probabilities, in which most of us are aware with that. In this category we will explain the only those topics which are important for our coursework, that is probability, mutual mutually exclusive events, joint probability of related and independent variable, or conditional probabilities. इसके दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे रैंडम वेरिएबल्स, cumulative distribution function of random variables, probability density function, और relation between the probability and PDF. और एक और है, that is joint cumulative distribution function and probability density function. तो फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट का जो भी टॉपिक है वो हम कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, और इसके बाद सेकंड पार्ट में आता है स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए होता है कि रैंडम वेरिएबल की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैन कैरेक्टराइज अ रैंडम वेरिएबल completely, but it is a little bit complex, so other tools are used in general cases to characterize or to define the behavior of a random variable, that is called statistical averages. उसमें हम स्टडी करेंगे मीन और एवरेजेस, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ टाइम एवरेज, और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हम बोल सकते हैं। किसी भी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी वही मीन या एवरेज ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेगी। एंड द सेकेंड वन विल रिप्रेजेंट द मीन स्क्वायर वैल्यू। इसी से हम आरएमएस पावर भी कैलकुलेट करते हैं किसी भी रैंडम सिग्नल्स का, रैंडम वेरिएबल का। एंड वेरिएंस यूज़ होता है टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक होगा कोरिलेशन। हम सब जानते हैं, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर सिग्नल एंड सिस्टम कोर्स वर्क दैट कोरिलेशन इंडिकेट द सिमिलरिटीज बिटवीन द टू सिग्नल्स। इन दिस context we only focus on autocorrelation. Autocorrelation function क्या होता है? When we find the similarity between a signal and its shifted version, either delayed or advanced, for a minus infinity to infinity, then we find the autocorrelation function. So we will discuss the autocorrelation in detail in coming slides. और नेक्स्ट टॉपिक होगा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। किसी भी रैंडम वेरिएबल या रैंडम प्रोसेस का टाइम डोमेन में जब हम एनालिसिस करते हैं, देन वी यूज़ द ऑटो कोरिलेशन फंक्शंस टू कैरेक्टराइज द एनी रैंडम प्रोसेस इन टाइम डोमेन, बट sometimes we require the characterization or behavior of a random process in frequency domain. Then we use power spectral density. So the power spectral density is used to characterize the behavior of any random process in frequency domain. तो अगर हमें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पता है इन टाइम डोमेन,
तो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी? बाय टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन अगर हमें पता है तो हम किसी भी रैंडम प्रोसेस को टाइम डोमेन में उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन auto correlation function cannot be defined, so the power spectral density, that is the Fourier transform of auto correlation function, is used to describe or used to give the information about the random processes in frequency domain. Then we will discuss the central limit theorem. In this presentation I skip this topic central limit theorem, but I will explain in voice. दैट इज़ अंडर सर्टेन कंडीशन, अगर आप लार्ज नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को एनालाइज करते हो तो वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का रूप ले लेता है. दैट मीन्स अंडर सर्टेन कंडीशन a large number of random variables will become the Gaussian, will show the Gaussian distributions. उसके लिए हम लोगों ने नोट्स में वो कर दिया है, नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जिसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम के लिए एक्सप्लेनेशन है. सेंट्रल लिमिट थ्योरम डिटेल में नहीं है आवर सिलेबस, वी हैव ओनली द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम इन आवर सिलेबस. सो द नेक्स्ट टॉपिक फॉर दिस प्रेजेंटेशन विल बी रैंडम प्रोसेस. रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस में डिफरेंसेस क्या हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक में. क्लासिफिकेशन और यू कैन से द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रैंडम प्रोसेस, इसमें हमने केवल स्ट्रिक्ट सेंस और वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस रखा है. एक और आपका रैंडम प्रोसेस होता है, कॉमनली यूज़ होता है, जिसको हम इर्गोडिक रैंडम प्रोसेस कहते हैं. रैंडम प्रोसेस इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस. So it is a function of outcome of any random experiment along with the time. अगर हम रैंडम वेरिएबल्स को इंडेक्स्ड करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो रैंडम प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन और table of content for this unit that we have to study in this unit. So let us start with the first topic. I hope all of you are aware with the probability, concept of probability, that is fundamental of probabilities, and we have not much probabilities concept in our syllabus, only review of probabilities. So probability को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? दैट मीन्स द परसेंटेज ऑफ चांसेस टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टेन इवेंट्स इज डिफाइंड बाय द प्रोबेबिलिटी. तो अगर हम ये कह सकते हैं कि हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं और उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे एक्सपेरिमेंट के, मान लीजिए हम किसी एक्सपेरिमेंट को 100 टाइम्स परफॉर्म करते हैं तो जो उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 100 होंगे. और उस तरीके से हम इस उनमें से अगर हम ये बोलें कि डिज़ायरेबल आउटकम्स जो हैं, दैट इज़ आउटकम ए, वो NA नंबर टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आता है. अगर हम ये बोल दें कि हम एक एक्सपेरिमेंट को N टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं और NA टाइम्स हमें डिज़ायरेबल आउटपुट मिल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A इज़ NA/N. ये तो हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिज़ायरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम. और अगर हम नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का नंबर ऑफ टाइम्स टेंड करें टूवर्ड्स इन्फिनिटी, दैट मीन्स इफ वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन फाइनाइट नंबर कंपैरेटिवली वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, you can say the n tends to infinity, then this relative frequency of occurrence of event A will be in form of probability. That means it provide the probability of an event A. तो हम क्या कर सकते हैं? इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो इसका बेसिक सा मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को
बहुत ज़्यादा बार परफॉर्म करें किसी भी एक्सपेरिमेंट को, तो जो डिज़ायरेबल आउटकम आता है उसका एक जनरल चांसेस ऑफ अकरेंस आ जाता है, परसेंटेज चांसेस मिल जाता है कि अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को 10,000 100,000 टाइम्स करते हैं और उसमें ये मिलता है कि जनरली जो भी चांसेस हैं वो 1/6% है, या फिर आप इस तरीके से बोलते हो 1/5 ऑफ ओवरऑल नंबर ऑफ टाइम्स जो भी हैं, तो एक हमें आउटकम मिल जाता है। वो एक जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन होता है जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देता है, और ये प्रोबेबिलिटीज़ कैन नॉट बी मोर देन दिस प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन 0 और मोर देन 1। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लेस देन 0 का मतलब है कि वो इवेंट कभी हुआ ही नहीं। दैट मीन्स अगर हम n टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं और हमें एक भी टाइम आउटपुट नहीं मिल रहा है, उस केस को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, जो कभी हो ही नहीं सकते। और प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 1। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स रिसीव हुए, मान लीजिए हमने n टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया और n टाइम्स ही हमें अपना डिज़ायर्ड आउटपुट मिल गया, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ए कैन बी 1। दैट मीन्स इट मस्ट लाई इन बिटवीन 0 and 1। If the event is not possible, then p equals to 0, while if the event is certain, then p equals to 1। इम्पॉसिबल इवेंट्स का एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये अगर हम ये बोलें कि दिस कोविड-19 पैंडमिक विल एंड बाय टुमारो, तो इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी ना तो वैक्सीन बनी है और ना ही इस पर कंट्रोल हुआ है, कोई हमारे पास ड्रग है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। वाइल इवेंट, इफ़ द इवेंट इज़ सर्टेन देन प्रोबेबिलिटी इज़ 1। सर्टेन इवेंट्स का एक एग्ज़ाम्पल कह सकते हो आप, सिंपल एग्ज़ाम्पल ऑफ सर्टेन इवेंट कि द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। ये एक सर्टेन इवेंट है, ये हमेशा फॉलो होता है। तो अगर कोई इवेंट बिल्कुल उसका अकरेंस 100% श्योरिटी है कि वो इवेंट आपका अकर करेगा, तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं? सर्टेन इवेंट्स बोलते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ऐसे सर्टेन इवेंट्स कोई भी इंफॉर्मेशन पास नहीं कर सकते। इस चीज़ का थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कशन किया था ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन थियरी, where information is directly related with the probability of certain events। किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जितनी लेस होगी, जितनी लेस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होगी, इंफॉर्मेशन गैदर वो इवेंट मैक्सिमम करेगा। तो अगर इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं तो वो इनफाइनाइट, जीरो कोई इवेंट्स हैं ही नहीं। अगर इवेंट सर्टन है, दैट मीन्स देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल इन दैट इवेंट्स। अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ any event is lies in between 1 and 0, then we can say that that event provides some information. So moving to the next subtopic of probability, that is mutually exclusive events। mutually exclusive events क्या होते हैं? अगर आपका किसी एक्सपेरिमेंट में 2 इवेंट अकर कर रहे हैं और दोनों एक साथ नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स व्हेन वन इवेंट अकर्स द अदर कैन नॉट अकर। अगर एक हो रहा है दूसरा नहीं हो सकता, तो उस दोनों इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। इस तरीके से हम स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी बोल सकते हैं कि द 2 इवेंट्स आर सेट टू बी स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ वन अकर्स एट दैट टाइम द सेकेंड इवेंट कैन नॉट अकर। So अगर probability, if there is 2 events A1 and A2 are the probability of occurrence of either A1 or A2 which are mutually exclusive events, then the probability of A or B, that means either A will happen or B will occur, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? the probability, individual probability of A1 events and individual probability of A2 events,
इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, मोर देन वन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन द overall probability of these mutual events can be the summation of all the probabilities of individual events, ये बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फॉर रिलेटेड एंड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज़ फॉर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसके पहले मैथमेटिकल एनालिसिस से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसका एक सीधा सा एग्जांपल लेके हम लोग समझ सकते हैं। if we consider event A as a study of basic electronics and event B as a study of analog circuit, किस तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर हम ये मान लें कि इवेंट A जो है वो स्टडी ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड इवेंट B है जो वो स्टडी ऑफ एनालॉग सर्किट्स है, तो हम कह सकते हैं कि if event A happens, that means if we studied the basic electronics, then it is definitely going to help us it is definitely will help to understand the analog circuit. That means event A is study of basic electronics and event B is a study of analog circuit. These two events are interrelated with one another because the study of one subject or one event will definitely affect the second events. और अगर हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करनी होगी तो क्या होगा, अगर हम ये कंसीडर करें कि इवेंट ए है स्टडी ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड इवेंट बी है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, तो इन दोनों इवेंट्स में कोई भी रिलेशन नहीं है बिकॉज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू in study of basic electronics. These are two independent subjects and you can say that these are two independent events. तो हमें related और independent events का concept clear हो गया. That means if the event A is somehow related or affect the occurrence of event B, then we can say that A and B are related, and if the occurrence of A will not affect the occurrence of B, then we can say that these two events are independent events. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अगर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं तो वो क्या करता है, वो अफेक्ट करता है हमारे एनालॉग सर्किट के स्टडी को, क्योंकि हमें वहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो ये होते हैं रिलेटेड इवेंट्स होते हैं। अगर हमने साइकोलॉजी पढ़ा है और उसके बाद हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं तो हमें कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। with the concept of psychology we have no clue about the basic electronics, so these two events are independent events. There are two different concepts. So in mathematical conditions अगर हम ये बोलें कि event A plus B is equals to probability of A plus probability of B minus PAB. PAB क्या डिफाइन करता है, joint probability of A and B when both event A and B occur simultaneously. This can be mathematically given with the this formula, that is PAB is equal to number of times A and B simultaneously occur and total number of experiment performed. When in that case you can say if the events are mutually exclusive or independent events, then we can directly say that PAB is equals to 0, joint probability will be definitely equals to 0, and if the A and B are related then the overall probability will be PA प्लस PB माइनस PAB. रिलेटेड इवेंट्स के लिए हमें ओवरऑल प्रॉबिलिटी फाइंड करनी होगी, तो वी विल यूज़ दिस फार्मूला टू फाइंड, एंड इफ़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए फाइंड करना होगा तो हम इस फार्मूले की यूज़ करेंगे. ओके, दीज आर ऑल अबाउट द probabilities, mutually exclusive events, independent and related probabilities, and now coming to the conditional probability, most important topic. इस चीज़ पे हम लोगों ने थोड़ा डिस्कशन किया है जब हम चैनल कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कुछ
बेसिक नॉलेज हम लोगों ने स्टडी किया था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि द occurrence of an event will, if the occurrence of an event affect the occurrence of other event, then that is called the conditional occurrence. Or if the probability of certain events is affected by the already occurred event, probability of already occurred event, तो हम उस चीज़ को conditional probability बोल सकते हैं। इसमें हम ये अगर बोलें कि पी बी बाई ए एक प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब क्या होगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, द probability of occurrence of B when event A has already occurred, that means इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं तभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। सो द प्रोबेबिलिटी दैट डिपेंड्स ऑन वेदर और नॉट other event occur is known as a conditional probability, denoted by P by A, and it is mathematically represented by this formula, that is PB by A equal to PAB, that is when A and B events are happened simultaneously and individual probability of A। इस किस तरीके से हम रख सकते हैं, इस चीज़ को याद करना हो तो हमें क्या करना है, जो भी लेफ़्ट साइड में डिनोमिनेटर में होगा उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी राइट साइड के डिनोमिनेटर में होगी, और न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा आपका, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी। इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से, तो हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ अगर हम इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को जस्टिफाई करें, दैट मीन्स पी बी बाई ए, दैट इज़ पी ए बी बाई पी ए, और पी ए बाई बी को हम करें तो ये रिसीव होगा पी ए बाई बी एंड डिवाइड बाई पी बी। तो क्या हो जाएगा आपका, इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं दो इक्वेशंस में, पी ए बी इक्वल्स टू पी ए बी मल्टीप्लाइड बाई पी बी एंड पी बी ए मल्टीप्लाइड बाई पी ए। Since the left side of these two equations are similar, so we can also represent this equation in this form, chain rules के according। This equation is called Bayes rule or Bayes theorem। तो क्या होता है, in Bayes theorem one conditional probability is expressed in terms of reversed conditional probabilities। तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक अगर पता है हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो दूसरे इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद द रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट इवेंट वी कैन कैलकुलेट इजीली विद यूजिंग ऑफ बेज रूल। ठीक है, तो बेज रूल आपका इम्पॉर्टेंट है, अगर कुछ भी न्यूमेरिकल आता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि वो बेज रूल पर ही आपका डिफाइन हो, तो आप ये बोल सकते हो कि इम्पॉर्टेंट है बेज रूल from the university point of view as well as from the competition point of view। Suppose that occurrence of outcome B simply does not depend at all an outcome of A, then event A and B are statistically independent। वो तो हम लोगों ने बोल दिया है कि अगर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं तो क्या होगा, E B by A, दैट मीन्स द अकरेंस ऑफ ए डज़ नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ बी। तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें हमने ये क्या लिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, अगर ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड एंड डज़ नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ बी, तो हम क्या बोल सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज सिंपली। सिमिलरली इफ these two events are independent A and B, then we can also find the joint probability PAB by using multiplication of PA into PB। ठीक है, तो ये हो सकता है। Now this is all about the probability concept related with your coursework। ये कंप्लीट probability का explanation नहीं है, हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स नहीं रखे हैं। आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ एनी बुक यू कैन सॉल्व फ्यू एग्जाम्पल्स रिलेटेड विद द डाइस
और कॉइन्स से रिलेटेड टॉसिंग अ कॉइन और थ्रोइंग ए डाइस के कुछ एग्जांपल लेके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और टाइम मिला तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको क्या करूँगा, सेंड भी कर दूँगा। लेकिन ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैथमेटिक्स में है तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो विद योर ओन इंटरेस्ट। अदरवाइज़ इतना आपका इस कोर्स के अकॉर्डिंग सफिशियंट है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के लिए हम लोग थोड़ा सा करते हैं, इस तरीके से देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल को कई तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है। इन फ्यू बुक्स रैंडम वेरिएबल इज़ कुछ बुक्स में इस तरीके से है कि रैंडम वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल हुज वैल्यूज़ अननोन और फंक्शन दैट असाइन वैल्यूज़ to each an experiment outcome. It is a process of assigning number to the outcomes. आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि it is a process of mapping the outcome of a random experiment into a number or real number. परफॉर्म आउटकम्स रैंडम प्रोसेस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हम कई डिफिनीसन होती हैं, बट in a simple way you can say a random variable can be defined as a variable that can attain different values at different occasions. ये आपका एक जनरल और सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हो किसी भी रैंडम वेरिएबल को। रैंडम वेरिएबल क्या होगा, टू डिफाइन एनी वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, वी हैव टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इज़ अनडिटर्मिनिस्टिक। अगर हमें किसी रैंडम वेरिएबल को ये प्रूफ करना हो कि वो वेरिएबल रैंडम है या नहीं, तो हम सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे, डिटर्मिनिस्टिक है या नहीं। अगर वो वेरिएबल डिटर्मिनिस्टिक है तो हम क्या बोल देंगे कि दैट इज़ नॉट अ रैंडम वेरिएबल। फर्स्ट थिंग ये हो गया कि कंडीशन हो गई, हमें कि ये चेक करना होगा कि अगर रैंडम वेरिएबल आपका पर्टिकुलर वेरिएबल रैंडम है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम डिटर्मिनिस्टिसिटी फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनिस्टिक किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, डिटर्मिनिस्टिक फाइंड करने के लिए कि अगर उस सिग्नल या उस रैंडम वेरिएबल से जो भी सिग्नल या वेरिएबल होगा उसकी फ्यूचर वैल्यू को अगर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो हम उस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो हम उसको डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल बोलते हैं। पास्ट वैल्यू को भी आप बोल सकते हो, तो अगर हम फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं तो हम उस चीज़ को बोल देते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स और डिटर्मिनिस्टिक रैंडम वेरिएबल्स। अनसर्टेन और अनडिटर्मिनिस्टिक में हम नहीं फाइंड कर सकते कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द बिहेव, हाउ इज़ दिस वेरिएबल विल बिहेव इन अ फ्यूचर। तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो कि किस तरीके से रैंडम वेरिएबल, तो सिंपल सा है, रैंडम वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट कैन अटेन डिफरेंट वैल्यूज़ एट डिफरेंट ओकेजन। इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ दीज रैंडम वेरिएबल्स आर डिफरेंट दैन द ओरिजिनल और यू कैन से अलजेब्रिक वेरिएबल। अलजेब्रिक वेरिएबल के लिए हम लोगों ने नेक्स्ट में एक एग्जांपल ले रखा है। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट हाउ दिस रैंडम वेरिएबल कॉन्सेप्ट कैन बी यूटिलाइज्ड इन डेली, हाउ कैन बी डिफाइन रैंडम वेरिएबल इन एनी इवेंट्स। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन 2 टाइम्स। हमने क्या किया, एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया। ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे उनको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस, या किसी भी इवेंट का आप लोगों ने स्टडी किया है किसमें, प्रोबेबिलिटी में, कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो कलेक्शन होता है, दैट मीन्स द कलेक्शन ऑफ all possible outcomes of an event is defined as a sample space or range of experiments। ठीक है, तो उस चीज़ को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या थे कि हेड हेड हो दोनों बार, या हेड टेल हो, या टेल हेड हो, या फिर टेल टेल हो।
अगर हम डिफाइन करते हैं, इफ वी डिफाइन एक्स रैंडम वेरिएबल करिस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ हेड्स, अगर हम एक रैंडम वेरिएबल x लेते हैं और उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, x इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स, देन x कैन अटेन एनी वैल्यू। तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये 2 हो सकती है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। क्यों 2 हो सकती है? क्योंकि फर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स था जिसमें दोनों हेड्स थे, सेकेंड पॉसिबल आउटकम्स है जिसमें एक ही हेड है तो एक हो सकता है, फिर एक होगा, और लास्ट तो x क्या है, 3-4 डिफरेंट वैल्यूज़, 4 वैल्यूज़ कैन अटेन बाय द x रैंडम वेरिएबल विच इज़ नंबर ऑफ हेड्स इन एन इवेंट और इन एन एक्सपेरिमेंट। तो अलजेब्रिक और रैंडम वेरिएबल, अलजेब्रिक वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इक्वेशन का 10 + x इक्वल्स टू 13, दैट इज x इक्वल्स टू 3, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक वेरिएबल। यहाँ पे x की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, दैट मीन्स x मस्ट बी इक्वल्स टू 3 ड्यू टू द इक्वेशन 10 + x इक्वल्स टू 13। यहाँ पे x कैन नॉट अटेन डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट ओकेजन्स बिकॉज द value of x equals to 3 is will define this equation right। random variable 2 टाइप से कैटेगराइज किए जा सकते हैं, random variable that one is continuous और discrete random variable, दोनों हो सकते हैं, continuous random variable या discrete random variable। discrete random variables क्या होते हैं कि जब भी हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को कि अ रैंडम वेरिएबल दैट हैव डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन अ डिफाइंड रेंज इज़ डिफाइंड एज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर हमें सैम्पल स्पेस पता है कि सैम्पल स्पेस में 14 पॉइंट्स हैं और हम मान लीजिए कोई हमने सैम्पल स्पेस क्रिएट किया 1000 पॉइंट्स का और उसमें हमने बोला कि 1 to 100 हमें फाइंड करना है, तो वहाँ पे जो भी डेफिनिट वैल्यूज़ होंगी फॉर अ रैंडम वेरिएबल दैट इज़ डेफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स ही होगा। तो हम उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं कि इन अ सर्टेन रेंज इफ़ द वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज़ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम उस चीज़ को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोल देते हैं। If for a certain range the variable x can attain infinite number of values, then that variable can be defined as a continuous variable। Similar आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि a discrete random variable is a variable that can attain only finite number of distinct values for a given range। तो हम given range में discrete जो वेरिएबल्स होंगे वो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ही वैल्यू को हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यू को अटेन कर सकते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैन अटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज़ ऑल अबाउट द रैंडम वेरिएबल। तो हमें अगर किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज़ रैंडम वेरिएबल, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा कि रैंडम वेरिएबल is a variable that can attain different values at different occasions। ये डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से कंडीशंस चेंज हो रही हैं, दैट विल ऑल्सो बी चेंज्ड। बट अलजेब्रिक जो वेरिएबल्स होते हैं वो इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं और उनकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज नहीं हो सकती। और रैंडम वेरिएबल आपके 2 टाइप से होते हैं, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो होंगे दैट कैन अटेन इनफाइनाइट डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ फॉर इन अ गिवन रेंज, whereas discrete random variable can attain only a finite distinct values in a given range। तो ये आप बोल सकते हो और एक एग्जांपल भी दे सकते हो इस टॉसिंग ऑफ अ कॉइन और थ्रोइंग अ डाइस का, जिसमें आप इस तरीके से बता सकते हो जैसे थ्रोइंग अ डाइस में आपके 6 फेसेस होते हैं, उसमें भी चांसेस होंगे कि अगर ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, कभी मान लीजिए आपने किसी रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया कि x इज़ अ रैंडम वेरिएबल दैट डिफाइन द आउटकम ऑफ अ डायस व्हेन 3 विल अकर। 3 आने की जो भी वो होंगे इवेंट्स होगा, जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो 3 वाला फेस
ऊपर होगा उस चीज़ के अगर चांसेस होंगे तो हमें हो सकता है कि हम अगर 5 और 6 टाइम्स वो करें, थ्रो करें डाइस, तो एक बार आ सकता है, 3 2 बार आ सकता है, 6 टाइम्स आ सकता है, मे बी 0 टाइम्स भी है, कोई किसी बार 3 आपका रिप्रेजेंट ना हो, तो उसमें चांसेस आपके हैं। तो उसी तरीके से हम वहाँ भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द x कैन अटेन 0 to 6 एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 6, जस्ट लाइक हियर 0 to 2, कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है एक रैंडम वेरिएबल, जबकि अलजेब्रिक वेरिएबल ऐसा नहीं कर सकते। आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि अ रैंडम वेरिएबल कैन अटेन एनी वैल्यू फ्रॉम द आउटकम ऑफ एन इवेंट। अगर हम मैथमेटिकली बोलें तो ये हो सकता है कि किसी भी सर्टेन इवेंट्स की अगर आउटकम्स लैम्डा हैं तो क्या होगा कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ लैम्डा, आउटकम ऑफ एन इवेंट का जो फंक्शन होगा, तो ये बेसिकली मैपिंग करता है आउटकम ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इनटू द रियल वर्ल्ड एंड इन रियल नंबर्स। तो आप इसको सिंपल सा बोल सकते हो। तो बेसिक आपका जो होगा वो ये होगा, ये डिफिनीशन ऑफ रैंडम वेरिएबल जो आपको क्लियर कर देगा कंसेप्ट ऑफ random variables. Now moving to the next topic, cumulative distribution function. Cumulative distribution function is accumulation of all probabilities of a random variable from -infinity to x. It is written as f of capital X of small x. अब इस रिप्रेजेंटेशन को पहले हम क्लियर कर लेते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन में जो कैपिटल एक्स है दैट रिप्रेजेंट द रैंडम वेरिएबल, सिंबल ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। अगर आपका रैंडम वेरिएबल वाई होगा तो यहाँ वाई हो जाए, एंड स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। सो अगर हम ये बोलें कि हमारे पास किसी भी रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स की 15 वैल्यूज़ हैं, 15 वैल्यूज़ पे जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास है, तो अगर हमें कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना होगा देन व्हाट विल वी डू, वी विल एक्यूमुलेट, दैट मीन्स वी विल ऐड ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ टिल 15। तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर हमें फाइंड करना हो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो हम सिंपल सा एक ही करेंगे, वी विल एक्यूमुलेट ऑल प्रोबेबिलिटीज़ अप टू 15। तो x होगा ओके कोई भी गिवन नंबर और कैपिटल X होगा रैंडम वेरिएबल। और डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज़ डिफाइंड बाय दिस इवेंट फॉर अ रैंडम वेरिएबल। इसको हम इस तरीके से और इजीली समझ सकते हैं कि अगर हम इसका एक एग्जांपल ले लें, दैट मीन्स प्रॉब्लम 1, लेट अस कंसीडर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एक एग्जांपल लेते हैं विद द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें x इक्वल्स टू 3, 5, 8 और 10 के लिए वैल्यूज़ हैं, और हमसे पूछा गया है फाइंड एंड प्लॉट द CDF ऑफ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ कैपिटल X। तो हमें CDF की डिफिनीसन तो पता ही है, इट इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ लेस दैन x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेस दैन 3 के लिए फाइंड करेंगे। क्यों लेस दैन 3 के लिए फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें बस फॉर 3, 5, 8 एंड 10 तक डिफरेंट वैल्यू x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ है। तो जब हम x से 3 से लेस x की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ x लेस दैन 3, इसके लिए हमारे पास ये पता है कि इसमें जो भी गिवन है इसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये बोल रहा है कि when x is less than 3, 0, otherwise x equals to 3 at this, at x equals to 5, 0.2, the probability of x is 0.2 for x equals to 10 and otherwise 0। केवल 3, 5, 8 और 10 की वैल्यू को छोड़ के बाकी सब जगह probability of random variable x क्या है, 0 है। तो इस चीज़ को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमें फाइंड करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस दैन 3 के लिए, तो 0 है तो उसको हम 0 बोल देंगे। अगर हमें फाइंड करना होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इन बिटवीन 3 एंड 5, दैट मीन्स 3 के इक्वल हो या उससे बड़ा हो, लेस देन 5 हो, तो उसमें जब हम प्रोबेबिलिटीज़
ऑफ एक्स ऐड करेंगे, इन दोनों में आप देख लो कि यहाँ पे क्या है, 5 से बिलो में ये पॉइंट नहीं आएगा। जब हम x इक्वल्स टू 4 पे डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, 0 है। तो हम x लेस दैन 3 से भी पहले 0 है, तो हम क्या करेंगे, 0 प्लस 0.33 पे, और मोर देन 3 लेस देन 5 के लिए भी क्या है आपका 0 है। तो इस तरीके से हम क्या बोल देंगे कि इस रेंज के लिए 0.3 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरीके से अगर हम फाइंड करेंगे फॉर 5 to 10, लेस देन 5 और इक्वल टू 5 और लेस देन 8, लेस देन 5 में 3 भी आएगा, एक पी एक्स ऑफ 3 भी आएगा और पी एक्स ऑफ 5 भी आएगा, लेकिन पी एक्स ऑफ 8 नहीं आएगा। तो हम इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं कि इसके लिए फॉर द सेकेंड के लिए पी एक्स ऑफ 3 को तो हम ऐड करेंगे ही, क्या होगा 0.3, पी एक्स ऑफ 1 पी एक्स ऑफ 2 क्या है 0 है, पी एक्स ऑफ 3 ऐड करेंगे एंड पी एक्स ऑफ 5 भी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.2, तो ये हो जाएगा आपका 0.5, क्या हो जाएगा 0.5। सिमिलरली अगर हम 8 to 10 करेंगे तो पी एक्स ऑफ 3 पी एक्स ऑफ 5 पी एक्स ऑफ 8 ऐड होगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0.8 होगी। और जब हम लेस दैन ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10 के लिए करेंगे तो पी एक्स 1 टू पी एक्स एन सब ऐड हो जाएंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो किसी भी CDF को। तो आप बोल सकते हो कि एक्युमुलेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ अप टू अ वैल्यू x की जहाँ तक वैल्यू होगी वहाँ तक आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। अगर हमें इसी में क्या करना होगा, ये तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल है। किसी ने कहा कि सर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो ये समेसन हो रहा है उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ अप टू सर्टेन वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जब हमें पहली बार करना होगा तो हम 0 से 3 के लिए जब करेंगे तो हम 3 को ही एक्सक्लूड करेंगे, 3 to 5 करेंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड करके फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज़। नाउ let us discuss the properties of cumulative distribution function। cumulative distribution function की properties में आप बोल सकते हो कि the first property is that the cumulative distribution function, that is accumulation of all probabilities of a random variable below or equal to value small x is always lies in between 0 to 1. That means it is a probability, it cannot be less than 0, that means it cannot be it will always be non-negative, or it cannot be greater than 1। तो नॉन निगेटिव होगा, लाई करेगा इन बिटवीन 0 and 1। तो हम इससे ये भी बोल सकते हैं कि कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ अ प्रोबेबिलिटी। और माइनस इन्फिनिटी पे 0 होगा, क्यों होगा, बिकॉज इट विल रिप्रेजेंट इम्पॉसिबल इवेंट्स, all events occur before and at infinity this will be 1 because the probability of occurring any event before infinity is always certain। हम इस तरीके से बोल सकते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो आपकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये दोनों प्रॉपर्टी यूज़ होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यूज़ हो सकती है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको किसी भी पता करना हो, क्या पता करना हो आपको, किसी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता हो और ये आपसे बोल दिया जाए कि फाइंड द कांस्टेंट a एंड b, वहाँ पे हम प्रॉपर्टी 1 यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 2 आपकी केवल नोट करने के लिए है, ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। हम इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम इस कंसेप्ट को यूज़ कर लेंगे। लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी आपकी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, दैट मीन्स fx1 इज़ लेस देन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू fx2। अगर x1 की जो x1 और x2 क्या है, एनी गिवन नंबर है दैट रैंडम वेरिएबल x कैन अटेन 3 या 5 हो सकता है, x इक्वल्स टू 3, कैपिटल X इक्वल्स टू 3 या कैपिटल X इक्वल्स टू 5,
तो x1 और x2 कोई नंबर होंगे, दैट नंबर कैन बी अटेन्ड बाय द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। तो अगर x1 लेस द x2 से तो fx1 लेस होगा fx2 से। इसका सीधा सा मतलब है कि दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ अ इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा, हमेशा अगर x1 लेस है तो fx1 भी लेस होगा, x2 लेस है तो fx2 भी लेस होगा एज़ कम्पेयर टू fx1। तो हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें इसी में क्या करना होगा, ये फाइंड करना हुआ बाई चांस, ये पता करना हुआ फॉर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहें फॉर अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल दैट इज़ CDF, तो हम उसको किस तरीके से करते हैं, -∞ to x, ठीक है, दैट इज़ probability density function of x and dx। इस तरीके से हम, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, probability density function पता होना चाहिए। तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे -∞ to x। x क्या होगा, कोई भी वैल्यू होगी रैंडम वेरिएबल की जो ये डिफाइन करेगी कि कहाँ तक आप रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू को कंसीडर करते हो, ठीक है। इसका एक आध एग्जांपल होगा, आगे हम डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम फाइंड भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके इम्पॉर्टेंट कर सकते हो या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन दोनों में से एक, हर साल आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और PDF पे आते हैं। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी पे डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, द एरिया अंडर द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन gives the probability of overall probability of the random variable x। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि probability density function जो होगा, अगर हमें प्लॉट करना हुआ तो probability density function plot is a graph between the probability and value of a random variable x। तो हम स्टार्ट करते हैं, let us start the definition of a probability density function। ये डिफाइंड होता है, इसमें एक चीज़ आप रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करोगे विद द CDF एंड PDF। CDF में आप कैपिटल F लेते हो, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्मॉल f x, कैपिटल X सेम होगा रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन के लिए। अगर हम y से रिप्रेजेंट करते हैं तो y होगा, एंड स्मॉल x रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x दैट कैन अटेन्ड बाय द कैपिटल X। तो ये कोई एक गिवन नंबर होगा जो x अटेन कर सकता है। तो अगर हम CDF को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द x, तो हम क्या कर सकते हैं, PDF फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स बाय डिफ्रेंशिएटिंग द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज़ भी हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट fx of x is always greater than 0 for all x। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और ये भी आप बोल सकते हो कि इट इज़ इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली एंड इट कैन नॉट बी निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा, हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा और क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो आपका प्रॉपर्टी ऑफ PDF है वो ये है कि व्हेन वी इंटीग्रेट अ PDF ओवर -∞ to ∞, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये आपकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये यूज़ होता है। इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिज़िकल मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ दैट द एरिया अंडर द PDF कर्व, द एरिया किसी भी, अगर हमें मान लो PDF कर्व दिया हो, प्लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हो
और हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो ये क्या करता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू इफ बी फाइंड द ओवरऑल एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व। अगर हम पीडीएफ कर्व के अंडर का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो उस रैंडम वेरिएबल की कंप्लीट प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसका प्रूफ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, प्रूफ वन लाइनर प्रूफ है, आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जब इंटीग्रेट किया आपने डेंसिटी को तो वो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया, और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रॉपर्टी से आप बोल सकते हो कि accumulation of all probabilities up to infinity is 1 and accumulation of all probabilities before minus infinity is 0। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ये है जो इम्पोर्टेंट है, दैट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द पीडीएफ एंड सीडीएफ। तो आप क्या बोल सकते हो कि द सीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स विद द फॉर्मूला CDF इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx विद अ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। हम क्या कर सकते हैं, ईजिली इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। इस लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विद फ्यू एग्जांपल्स। उसके पहले हमने क्या किया है, इस चीज़ को थोड़ा सा सेम उसमें रिप्रेजेंट कर दिया है डिफरेंट फॉर्म में। प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करना हो, ठीक है, अगर हमें CDF PDF फाइंड करना है वो भी ठीक है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x फाइंड करना है विद इन सर्टेन लिमिट्स, दैट मीन्स इफ वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x बिटवीन कांस्टेंट a एंड कांस्टेंट b, ये क्या हो सकते हैं, 1 2 हो सकता है, 5 10 हो सकता है। तो अगर हमें किसी भी रैंडम वेरिएबल x का a और b के बीच में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, by subtracting cumulative CDF at b minus, that means accumulation of all probabilities up to b minus accumulation of all probabilities up to a। या इसी को हम दूसरे तरीके से, ये तो तब हम यूज़ करेंगे जब हमें CDF पता होगा तो हम मिडिल सेक्शन को यूज़ कर लेंगे। अगर हमें पता होगा PDF और हमसे पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इन बिटवीन a एंड b, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे, उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम a टू b। इसको इंटीग्रेट करते ही हमें क्या पता चल जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x बिटवीन a एंड b। और अगर हमें क्या पता होगा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो लार्ज क्वांटिटी होगी, जैसे b आपका a से ग्रेटर है तो हम पहले fx ऑफ b कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब b से लेस जितनी भी प्रोबेबिलिटी हैं सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद हम a तक की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे, जैसे हम लोग एग्जांपल में हमने देखा था, और फिर एफ बी को एफ ए से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ PDF। तो क्या है, लेट x बी ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग PDF f(x) of x इक्वल्स टू c e⁻⁻x। और इस चीज़ को आप बोल सकते हो, तो ये क्वेश्चन है वेयर इज c इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट। आपको फाइंड करना है c की वैल्यू, CDF भी फाइंड करना है, एंड प्रोबेबिलिटीज़ बिटवीन x एंड y। तीनों प्रोबेबिलिटी, तीनों कंसेप्ट आप यूज़ कर सकते हो। जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ की, प्रॉपर्टी सेकेंड आप यूज़ करोगे, जिसमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें क्या होगा, इक्वल इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो हमेशा ये फंक्शन आपका 0 है तो उसको इंटीग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है। हम इंटीग्रेट क्या करेंगे, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो उसके लिए हमने इंटीग्रेट किया और उसकी वैल्यू आई 1 के इक्वल। नाउ CDF फाइंड करने के लिए क्या करते हो, PDF से अगर हमें CDF फाइंड करना होता है तो हम थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, ये थर्ड प्रॉपर्टी इज़ दिस। तो आप इस चीज़ को फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग द थर्ड प्रॉपर्टी। हम PDF को इंटीग्रेट करेंगे
माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, और उसके लिए हमने क्या किया, अप टू एफ एक्स ज़ीरो फॉर एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इस चीज़ को जीरो से माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, तो ज़ीरो ही है, ज़ीरो से एक्स के लिए क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जिसकी वैल्यू आई 1 माइनस ई टू पावर एक्स। तो हम बोल देंगे कि जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स होगा फॉर ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो एंड ज़ीरो अदरवाइज। थर्ड क्वेश्चन आप क्या यूज़ कर सकते हो, थर्ड क्वेश्चन के लिए जो आपने डिस्कस किया है ये प्रॉपर्टी, ये वाली, इस वाले में थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज़ पी ए लेस दैन कैपिटल एक्स लेस दैन बी के लिए हम दोनों में से कोई फाइंड यूज़ कर सकते हैं। हमारे लिए इजी क्या होगा, हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यूज़ कर लें। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है पी एक्स इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड लेस दैन 3, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स ऑफ 3 ग्रेटर वैल्यू तक के लिए कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करेंगे, और एफ एक्स वन दोनों की वैल्यू में क्या करें, एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस स्मॉल एक्स था, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू 3 है, तो हम 3 पुट कर देंगे, माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस, अब क्या है, स्मॉल एक्स की वैल्यू 1 है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ई टू द पावर माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3 एक्सप्लेनेशन है। इसको हम इस यहाँ भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, मैथमेटिकल है, इट कैन बी ईजिली कैलकुलेटेड बाई योर सेल्फ। सिमिलरली प्रॉब्लम सेकेंड भी है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 1/2 ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स for all x less than or equal to real value, if y equals to x square find the CDF of y। इसमें थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने कि रैंडम वेरिएबल x की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिए हैं और रिलेशन दिए हैं बिटवीन रैंडम वेरिएबल x एंड y, और हमसे पूछा क्या गया है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है कि द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल y फॉर वैल्यू स्मॉल y इज इक्वल्स टू पी वाई कैपिटल Y लेस देन और इक्वल टू, ये तो बेसिक डिफिनीशन होगी, CDF की जो डिफिनीशन है उससे हमने क्या किया, इसको नोट कर लिया। अब हमने क्या किया कि y की जगह रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर को, क्योंकि हमें पता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और now if we take the square root then we can say that the x can lie in between minus under root y to y। अब ये जब हमें पता चल गया कि x की वैल्यू माइनस रूट वाई से y तक इंटीग्रेट हो सकता है, देन वी विल यूज़ द concept of this, we will use this concept here, we will use this last properties that is a to b fx u du। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो प्रिंसिपल यूज़ कर लेंगे और क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं CDF ऑफ y। लेट अस सी द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में आपको डायरेक्टली पूछा गया है पी एक्स लेस देन और इक्वल टू 2/3 और डिवाइड बाई पी एक्स ग्रेटर देन 1/3। इनमें दिया हुआ है PDF दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटीज़ रेशियो पूछा गया है बेसिकली। तो इस चीज़ को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, व्हेन x ग्रेटर देन 1/3 एंड 2/3। पहले हम प्रोबेबिलिटीज़ इन बिटवीन 1/3 एंड 2/3 ओवरऑल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे एंड डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटीज़ x व्हेन x ग्रेटर दैन 1/3। इसके लिए सिंपल वही प्रीवियस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड PDF। जो हमने अभी रिलेशन फाइंड किया वो यही थे, हमने जो यूज़ किया है अब क्वेश्चंस में, दीज आर द रिलेशन बिटवीन द प्रोबेबिलिटीज डेंसिटी फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन रैंडम वेरिएबल x।
तो हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी आपकी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम यूनिवर्सिटी एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। कम्युनिकेशन में आप बोल सकते हो कि द probabilities between x1 and x2 can be calculated by integrating the PDF x1 and x2 fx। अगर आपको दिया होता CDF तो आप सिंपली क्या करते, fx2 माइनस fx1 कर देते तो भी आ जाता। ठीक है, ओके। कमिंग टू द अनदर फॉर्म ऑफ, आप ये बोल सकते हो कि स्पेशल फॉर्म ऑफ probability density function यूनिफॉर्म PDF। यूनिफॉर्म PDF की डिफिनीशन है, रैंडम वेरिएबल x is said to be uniformly distributed over the interval a and b of its PDF if its PDF is in the form of this। अगर हम इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से, दैट इज़ रिलेटेड विद द। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको PDF पता है तो हम क्या कर सकते हैं, PDF को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इस टाइप का कर्व मिल जाएगा। ठीक है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से कोई भी PDF डिफाइंड है फॉर अ रैंडम वेरिएबल तो हम उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल बोल सकते हैं। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ PDF इज़ लेस दैन इज़ 0 फॉर लेस दैन A and 0 for greater than B, in between A and B it is 1 upon B minus A। तो इस चीज़ को आप एक तरीके से बोल सकते हो, तो हम फाइंड कर सकते हैं। और इससे हम क्या पता कर सकते हैं, CDF ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, x माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, उसको प्लॉट कर सकते हैं। हमने प्लॉट कर दिया। कम्युलेटिव, इसी में हम थोड़ा सा इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जॉइंट कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए इफ़ द two random variables are involved, joint probability distribution function given है या density function given है, then we can find the cumulative distribution function, joint cumulative distribution function by this formula। इसका एग्जाम्पलेस यूज़ है आपके कोर्स से, बट यू कैन आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, रख सकते हो फॉर फ्यूचर यूज़। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। स्टैटिस्टिकल एवरेजेस की रिक्वायरमेंट क्या है। जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था वो किसी भी रैंडम वेरिएबल को कैरेक्टराइज कर सकता है। दैट मीन्स अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज sufficient to characterize or to describe the behavior of a random variable, but it is little bit complex। We cannot use frequently PDF for characterizing a random variable। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, we need a little bit simpler parameter that describe the behavior of a random variable and that are called statistical averages। तो हम क्या बोल सकते हैं कि there are other numbers which provide useful information about the random variable quickly। These are statistical averages in which average or mean or expected value, standard deviation, variance are these parameters that describe a random variable easily। So mean or expected value calculation is given by a random variable minus infinity to infinity x dot PDF of that random variable fx of x dx। fx क्या है आपका, probability density function of particular random variable। मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए हम सेकेंड मोमेंट के लिए फाइंड करते हैं अराउंड 0 ओरिजिन के, तो हमें क्या मिलता है, दिस इज़ द सेकेंड मोमेंट। मीन स्क्वायर वैल्यू को हम बोल सकते हैं सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो x माइनस 0 पावर स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, इस चीज़ को हम बोल सकते हैं। दिस विल ऑल्सो गिव द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। वेरिएंस आपका यूज़ होता है फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन
randomness of random variable and square root of this variance will define the standard deviation of a random variable. Always take positive values of random variable. जब भी हम सिग्मा स्क्वायर को वो करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर आएगा. उसमें से हम केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही, स्टैंडर्ड डेविएशन में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे. उसकी कैलकुलेशन की मेथड्स हैं जिनको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो द वेरिएंस इक्वल्स टू स्क्वायर मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस स्क्वायर ऑफ mean value or average value. Standard deviation can be calculated easily. So a random variable can also be described with the help of these parameters called statistical averages: mean square value, variance, standard deviation. तो इन सब पे अगर न्यूमेरिकल कुछ भी आता है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दीज फार्मूलाज टू फाइंड द मीन स्क्वायर वैल्यूज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस. कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में पूछते हैं कि व्हाट इज़ द आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल और रैंडम सिग्नल्स. तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द मीन स्क्वायर वैल्यू. कौन सी स्क्वायर वैल्यू? वी विल फाइंड द मीन स्क्वायर वैल्यू. वो क्या करता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस वैल्यू देता है, आरएमएस सिग्नल देता है, आरएमएस पावर देता है किसी भी सिग्नल, रैंडम सिग्नल्स के लिए. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोरिलेशन. कोरिलेशन आपका बेसिकली फाइंड करता है सिमिलरिटी बिटवीन द टू सिग्नल्स. You can say that correlation describes the mutual relationship which exists between two or more things. We have also studied the correlation concept in signal system, in which we defined it as correlation is a process in which we find the similarity between the signal 1 and signal 2. The correlation can be classified in two categories, that is cross correlation and autocorrelation. If we find the similarities between the a signal xt and its shifted version, then it is called autocorrelation. That means अगर हम दो सेम सिग्नल में और सिमिलरिटी फाइंड करते हैं, दैट मीन्स सिग्नल xt और उसके शिफ्टेड वर्जन ऑफ xt में फाइंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन. इफ़ वी फाइंड द सिमिलरिटी बिटवीन द टू सिग्नल्स xt एंड yt, these two signals are different, तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्रॉस कोरिलेशन. क्रॉस कोरिलेशन आपके कोर्स ऑफ कंटेंट्स के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड नहीं है, सो I am not discussing that concept here. Autocorrelation can be calculated with the help of this formula for a continuous time variables and for discrete this. Most of the cases या आप कह सकते हो कि in digital communication the time continuous time random variables are frequently asked to calculate the autocorrelation. तो आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो. Where star represents complex conjugate of t, that means it is possible that xt may be a complex signal. आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल है तो उसको शिफ्ट तो करना ही है, आइदर इट इज़ डिलेड और एडवांस, दोनों हो सकते हैं. एक्स ऑफ टी प्लस टाउ भी हो सकता है, एक्स ऑफ टी माइनस टाउ भी हो सकता है. तो केवल शिफ्टेड वर्जन, टाइम शिफ्टेड वर्जन ऑफ इटसेल्फ क्या होगा, फाइंड करेगा. दैट मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ कोरिलेशन इन विच द गिवन सिग्नल इज कोरिलेटेड विद इटसेल्फ, यूजुअली द टाइम शिफ्टेड वर्जन ऑफ इटसेल्फ. ठीक है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटो कोरिलेशन. एंड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन रीड्स आर एक्स टाउ, आर एक्स एक्स टाउ भी रिप्रेजेंट करते हैं. आर एक्स एक्स टाउ इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी प्लस एक्स टी प्लस टाउ. कुछ भी मैंने बोला था अभी कि आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, टी माइनस टाउ भी हो सकता है
t माइनस टाउ भी हो सकता है एंड t प्लस टाउ भी हो सकता है. तो xt इज़ अनशिफ्टेड वर्जन एंड xt प्लस टाउ इज शिफ्टेड वर्जन. तो अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xt एंड xt प्लस टाउ अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमें क्या पता चल जाएगा, ऑटो कोरिलेशन बिटवीन द x एंड इट्स शिफ्टेड वर्जन पता चल जाएगा. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रैंडम प्रोसेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग टाउ इक्वल्स टू 0. हम इस तरीके से मीन स्क्वायर वैल्यू जो फाइंड कर सकते हैं वो बाय टाउ, अगर हम एवब इस रिलेशन में अगर हम टाउ इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, आर एक्स एक्स टाउ इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर. दैट इज़ मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रैंडम प्रोसेस पता चल जाएगा. ठीक है. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन ऑफ टाउ. दैट मीन्स जितना भी हम शिफ्ट करेंगे उस पर्टिकुलर शिफ्टिंग क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, इवन होगा. दैट मीन्स आर एक्स एक्स टाउ इज इक्वल्स टू आर एक्स एक्स ऑफ माइनस टाउ. आर एक्स बोल सकते हैं या फिर आर एक्स एक्स भी बोल सकते हैं. तो वो अगर आपका ऑटो कोरिलेशन है तो एक्स का एक्स के साथ करते हैं, इसलिए हम आर एक्स एक्स टाउ भी बोल सकते हैं. Which will be more convenient to understand that the two signals are same. Autocorrelation function Rx tau has its maximum magnitude at tau equals to 0. This is the property of autocorrelation. Important property आप बोल सकते हो कि at tau equals to 0 पे जो वैल्यू होगी autocorrelation की, that will be the maximum value of autocorrelation function. Now coming to the power spectral density. पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी PSD जिसे आप बोलते हो. पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बेसिकली गिव द रिलेशन बिटवीन द पावर ऑफ अ सर्टेन रैंडम प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी. इट इज़ मेजर्ड इन वॉट पर हर्ट्ज. ठीक है. सो इफ xt इज़ अ रैंडम स्टेशनरी प्रोसेस आइदर स्ट्रिक्ट सेंस और वाइड सेंस. वी विल डिस्कस दीज रैंडम प्रोसेस in coming slides, so need not to worry. With auto correlation function or tau, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी रैंडम प्रोसेस का. अगर हमें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पता होगा देन वी कैन ईजिली फाइंड द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ दैट रैंडम प्रोसेस. स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस के लिए ईजी हो जाता है बिकॉज स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस कि जो बिहेवियर होता है दैट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. सो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम प्रोसेस. xt का जो ऑटो कोरिलेशन होगा उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम ईजिली ट्रांसफॉर्म करके ईजिली पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं. देन सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो होता है वो होता है फॉर एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ रैंडम प्रोसेस इन टाइम डोमेन. टाइम डोमेन में अगर हमें किसी भी रैंडम प्रोसेस की कैरेक्टराइज करना होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करना होगा, देन वी विल यूज़ द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन टू identify the behavior of that particular random process. But अगर हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में किसी भी रैंडम प्रोसेस को एनालाइज करना होगा देन वी हैव टू यूज़ द PSD पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कर्व. सो द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी form a Fourier transform pair. That means if auto correlation function is known, then we can find the probability density function by taking the Fourier transform. अगर आपको PSD पता होगा किसी भी रैंडम प्रोसेस X का, अगर हमें रैंडम प्रोसेस X का PSD पता होगा देन यू कैन डायरेक्टली फाइंड द Fourier transform and inverse Fourier transform. This is the property. That means the autocorrelation and power spectral density form the Fourier transform pair. If R tau is known, then by
by taking the Fourier transform we can calculate the sx of omega, and if sx of omega is known, then we by using the inverse Fourier transform we can calculate the rx tau. तो आप बोल सकते हो कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज नीडेड टू कैरेक्टराइज द रैंडम प्रोसेस इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें अगर किसी भी रैंडम प्रोसेस को डिस्क्राइब करना होगा या उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना होगा, देन वी विल यूज़ द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कंसेप्ट टू कैरेक्टराइज दैट रैंडम प्रोसेस. अगर वहीं उसी रैंडम प्रोसेस को हमें टाइम डोमेन में डिस्क्राइब करना होगा, देन वी विल यूज़ द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर रैंडम प्रोसेस टू एक्सप्लेन इट्स बिहेवियर. आप इस तरीके से बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन ईजिली फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. तो आप बोल सकते हो कि अगर आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उस पर्टिकुलर रैंडम प्रोसेस का ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पता होना चाहिए. बाय इंटीग्रेटिंग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आर टाउ ई टू द पावर माइनस जे डब्ल्यू टाउ डी टाउ, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर रैंडम प्रोसेस. दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो. Based on this property, several questions were asked in the previous year of GATE as well as ES. The first property of power spectral density is defines that power spectral density is an even function of frequency, that is omega. You can also say this like S of F. You can say S x of f equals to S of minus f. You can also represent it in hertz, but W it is in radians per second. So power spectral density is an even function. The second property indicates that the power spectral density is always greater than 0 and it is a non-negative quantity. Its value will always be greater than or equal to 0 because it represents the power corresponding to the particular random process. And the most important property of the power spectral density is that it is always a real number. Power spectral density of random process x cannot be an imaginary, so it is always a real function, and it is a non-negative, it is an even function, and it forms a Fourier transform pair with the autocorrelation function of particular random variable. So these are the four properties of the PSD. First property indicates that PSD is an even function. Second property indicates that it is a non-negative and a real. It gives a non-negative and real values. And third one it forms a Fourier transform. And the fourth one is that the mean square value or power of any random process xt can be calculated by integrating minus infinity to infinity PSD of that particular random process. Root mean square value or RMS power can be calculated with this formula. Okay, so if we have a power spectral density curve and question asked us to find the average power corresponding to the PSD curve, then we will use this fourth property to find the average power below the power spectral density curve. कई क्वेश्चंस में इस तरीके से पूछा जाता है, आपका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कर्व दिया होता है और पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि फाइंड द एवरेज पावर फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स हुज PSD इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग ग्राफ. तो हम क्या करेंगे, उस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लेंगे. वी विल फाइंड द एरिया अंडर दैट कर्व. तो हम क्या कर सकते हैं, दैट एरिया इज इक्वल्स टू द एवरेज पावर करिस्पॉन्डिंग टू द रैंडम प्रोसेस. सो और दूसरा तरीका क्या है, अगर इजी होगा तो, अगर आपको नहीं इजी है देन यू कैन
find the equation of power spectral density and integrate for a given limit. इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं. तो एवरेज पावर कैलकुलेट करना होगा फ्रॉम पी देन वी विल इंटीग्रेट और वी विल फाइंड द एरिया अंडर द power spectral density curve. So let us take an example to understand the random process whose autocorrelation function is given as e to the power minus a tau, and we have to find the power spectral density. By taking the Fourier transform we can easily find it. A simple numerical, there is nothing to explain. You already, I hope you all are aware with the Fourier transform. So it's a simple formula based numerical, so you can easily solve that. This is also similar type of question, power spectral density of xt and Ex square of t. Ex square of t can be directly calculated by putting the tau equals to 0 and whose value from the given graph, if we put the value tau equals to 0 here, then we can say that Rx of 0 equals to 1, that will equals to the Ex square of t. And for calculating the power spectral density we can use the Fourier transform for this curve, and that will be equal to the sinc f square. So find the Fourier transform of this equation. Next question is to find I included this question only because of the this relation, that is equal to power spectral density of output of a filter is equals to the Fourier transfer function of a filter multiplied with the power spectral density of input signal. Suppose that there is a LTI system, linear time invariant system, whose transfer function is given as HF, and if the input PSD is given, if the PSD of input variable x is given, and if you have to find the spectral density of y, that is sy of f आपको फाइंड करना है, आउटपुट सिग्नल की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड करना है, और हमें क्या पता है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस LTI सिस्टम की HF पता है, एंड आउटपुट पता करना है, और इनपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. सो if the input power spectral density and transfer function of an LTI system is known, then we can find the power spectral density of output random process by using this formula, that is sy of f equals to mod hf square sxy. इसका क्या करते हैं हम थर्ड यूनिट में परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ मैच्ड फिल्टर्स एंड डिफरेंट फिल्टर्स में इसका थोड़ा सा प्रूफ भी है, तो आप उस जगह से आप इसके प्रूफ को देख सकते हो, वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है ये न्यूमेरिकल. सो यू कैन फाइंड द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ आउटपुट सिग्नल बाय दिस फार्मूला. ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हो, अच्छा हियर द इम्पल्स रिस्पॉन्स ht गिवन है, हम इसका क्या ले लेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/1 + j2πf 1/1 + ओमेगा. तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो HF को. इसका हम जब मॉडल लेंगे तो 1/√1 + ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. सो और एज इनपुट जो है वाइट गॉसियन नॉइज़ है, और इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी गिवन है कितना, n0/2. by putting the values we can find this as n0/2 divided by 1 + 2πf square. Ry of tau, that means we have to find the inverse Fourier transform of power spectral density of y. हम क्या करेंगे, as we know that power spectral density and autocorrelation function फॉर्म Fourier ट्रांसफॉर्म पेयर. तो हम इसको ईजिली बोल सकते हैं
कि ये क्या करेगा, हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे इस पर्टिकुलर ग्राफ का, तो हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। n0/4 e⁻ मोटा हुआ है। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है बाय रिवाइजिंग योर कंसेप्ट विद द फोरियर ट्रांसफॉर्म। e(y)² फाइंड करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है उसमें टाउ की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, दैट विल गिव द मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर रैंडम प्रोसेस y(t). ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो ऑटो कोरिलेशन और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर फॉर्म करते हैं। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का यूज़ होता है व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब अ रैंडम प्रोसेस इन टाइम डोमेन, और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का यूज़ होता है व्हेन वी यूज़ टू कैरेक्टराइज अ रैंडम प्रोसेस इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। With the help of properties of autocorrelation and power spectral density, we can characterize or we can describe any random process either in time domain or in frequency domain easily. So आपको क्या करना है, ऑटो कोरिलेशन और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की डिफिनीसन के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी याद रखना है। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज़ रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस और रैंडम वेरिएबल में सबसे पहले हम इसी चीज़ में सबको कन्फ्यूज़न होता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस इन रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये ज़्यादा क्लीन है। सिंपली आप बोल सकते हो कि रैंडम वेरिएबल इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटकम ऑफ एन इवेंट। हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसके लैम्डा n नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं, तो किसी एक आउटकम्स की जो वैल्यू होती है उसको नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है आपका रैंडम वेरिएबल। अगर हम इसी रैंडम वेरिएबल को टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें, दैट विल बिकम द रैंडम प्रोसेस। दैट मीन्स अ रैंडम प्रोसेस is a collection of random variables usually indexed by time. So you can say that a random variable is a variable that can attain different values at different occasions, and if we consider these different values of random variable with respect to time, तो आप उस चीज़ को क्या बोल सकते हो, रैंडम प्रोसेस बोल सकते हो। सो द रैंडम प्रोसेस इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट along with the time. So random process is a collection of random variables usually indexed with time. तो आप बोल सकते हो इस चीज़ को कि अगर हमें पता करना होगा कि एक रैंडम प्रोसेस क्या है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटकम ऑफ a random experiment when considered for a time. अब इसके लिए सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, कि अगर हम टेम्परेचर फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट पे, अगर हमें टेम्परेचर फाइंड करना है, तो अगर हम टेम्परेचर फाइंड करते हैं डिफरेंट डेज़ के लिए, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, फॉर मान लीजिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपने अपने रूम का टेम्परेचर मेज़र किया फॉर अ पर्टिकुलर टाइम 12 नून पे, तो वो जो हो गए वो होगा आपका आउटकम जो होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट का, वो होगा सिंपल रैंडम वेरिएबल 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, मे बी 20 डिग्री सेल्सियस। बट इफ़ वी मेज़र द टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर, या फॉर 3 आवर, फॉर 10 डेज़, तो हम क्या करेंगे, डेज़ की वाइज तो टेम्परेचर वेरी ही करेगा, बट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विल ऑल्सो टेक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लीजिए आपने 3 आवर्स का टेम्परेचर मेज़र किया फॉर मंडे को, आपने 3 से 6 PM तक मेज़र किया, द टेम्परेचर वेरिएशन होगा आपका 3 PM पे मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 6 PM पे हो सकता है कि वो 20 डिग्री सेल्सियस हो। सो द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ कॉल्ड द रैंडम प्रोसेस। इस केस में
आपका जो टेम्परेचर था वो टाइम के रिस्पेक्ट में भी वेरी कर रहा है. सो when a random variable is considered for a time interval, then that will become the random process. So the random process is a function of outcome of a random experiment with respect to time. आप सिंपली बोल सकते हो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्टोकास्टिक प्रोसेस. स्टोकास्टिक प्रोसेस में जो ये आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये इंडिकेट करता है कि जो भी इस रैंडम प्रोसेस होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंडेक्स्ड होगा वेयर जीरो इज़ इंक्लूडेड अप टू इनफाइनाइट टाइम के लिए. हियर स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट दैट जीरो इज़ इंक्लूडेड एंड this small braces indicate that infinite cannot be defined, so it is an open interval from upper side. तो आप इसको बोल सकते हो up to infinite for a large value of time. उस चीज़ को अगर हम कर सकते हैं तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि रैंडम प्रोसेस को किसी भी रैंडम वेरिएबल को अगर हम फॉर अ इंटरवल ऑफ टाइम एनालाइज करते हैं दैट विल बिकम द रैंडम प्रोसेस. ठीक है, तो आप एक कंक्लूज़न पे निकल सकते हो कि अ रैंडम प्रोसेस इज़ अ रैंडम फंक्शन ऑफ टाइम. और इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि व्हेन अ रैंडम वेरिएबल इज़ कंसीडर्ड फॉर अ रेंज ऑफ टाइम और फॉर अ इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट विल बिकम द रैंडम प्रोसेस. और यू कैन ऑल्सो डिफाइन अ रैंडम प्रोसेस एज अ function of outcomes of a random experiment. You can say a random process is a function of outcome of a random experiment for a certain time interval. तो it is a function of outcome of a random experiment and time, दोनों का function होगा, whereas random variable is only function of outcome of a random experiment. So a random process is classified in two categories: stationary or ergodic random processes. Stationary random process is again divided in two categories, that is strict sense stationary random process and weak sense or wide sense stationary random process. So हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस को जब हमें डिफाइन करना होता है देन वी विल यूज़ द CDF फंक्शन, जॉइंट CDF ऑफ different random processes to identify whether they are strict sense or simply stationary random processes. तो अगर आपका joint CDF of random processes does not change with shift in time, अगर उसका behavior टाइम शिफ्ट के साथ चेंज नहीं हो रहा है, अगर CDF ऑफ joint CDF of different random process does not change with the time shift, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो रैंडम प्रोसेस क्या है? स्ट्रिक्ट सेंस रैंडम प्रोसेस है. सिंपल, आपको अगर किसी भी रैंडम प्रोसेस को स्ट्रिक्ट सेंस रैंडम प्रोसेस प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे? CDF जो भी होगा उसको शिफ्ट करोगे और शिफ्टिंग करने के बाद अगर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है तो आप बोल दोगे कि दैट इज़ अ स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस. स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस को आप डायरेक्टली सिंपल वे में बोल सकते हो कि प्रोसेस इज सेड टू बी स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस इफ़ अ टाइम शिफ्टिंग डज नॉट इफेक्ट इट्स प्रॉपर्टी. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू द next that is a wide sense stationary process. Before that I think two topics should be explained, that is called time average and ensemble average. There are two different kind of averages in context to random process. time average क्या होता है? time average के लिए हम बोल सकते हैं कि it is एवरेज्ड क्वांटिटी ऑफ सिंगल सिस्टम ओवर अ टाइम. मान लीजिए ये आपका एक कॉन्टीन्यूअस रैंडम प्रोसेस है, अगर हम इस चीज़ को कंप्लीट टाइमिंग के लिए एवरेज करेंगे तो ये जीरो आएगा, साइनसोइडल है. अदरवाइज़ आप ये बोल सकते हो कि
अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करें कि ये है आपका एक रैंडम वेरिएबल, और दो हमने क्या किए, दो रैंडम प्रोसेस को ड्रॉ कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टी. इट इज़ x1 ऑफ टी एंड इट इज़ x2 ऑफ टी. तो अगर हम एक ही सिंगल सिस्टम के वैल्यू को एवरेज करेंगे along a time, then it will define the time average single system over a time interval directly related to the real experiment. Ensemble average क्या होता है कि when we average the value of different signals at any particular time, then that is called the ensemble average. आपको समझ में आया क्या करना है? अगर हमें किसी भी दो सिग्नल, आपको पता है, अगर हम एक सिग्नल को विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लें, तो हम उस चीज़ को बोलेंगे, क्या होगा, वो टाइम एवरेज होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर सिग्नल. अगर हम डिफरेंट सिग्नल्स को किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उनकी वैल्यू का एवरेज करते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे x1 की इस वैल्यू का और x2 की इस वैल्यू को ऐड करके हम इनका एवरेज फाइंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंसेम्बल एवरेज. इसी पे बेस्ड है इर्गोडिसिटी प्रिंसिपल. इर्गोडिसिटी क्या बोलते हैं कि अ रैंडम प्रोसेस इज डिफाइंड एज ए इर्गोडिक प्रोसेस इफ ensemble average and time average is same. So for ergodic process ensemble, अगर हमें किसी भी प्रोसेस को ergodic प्रूफ करना होगा तो हम क्या करेंगे, टाइम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ सिमिलर टू द मीन और एवरेज ऑफ रैंडम वेरिएबल x, जैसे आप मीन और एवरेज स्टैटिस्टिकल एवरेज में कैलकुलेट करते हो. इंसेम्बल एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट सिग्नल्स जो होंगे उनकी एक पर्टिकुलर टाइम पे एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे फॉर डिफरेंट सिस्टम्स के लिए. तो वो जो एवरेज आएगा वो इंसेम्बल एवरेज होगा. और ये दोनों अगर सेम है, दैट इज़ इर्गोडिक सिस्टम, और यू कैन से दैट प्रोसेस इज इर्गोडिक. Now moving to the second stationary process, that is called wide sense stationary process, or you can also define as a weak sense stationary random process. अगर हमें किसी भी रैंडम प्रोसेस को वाइड सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस प्रूफ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इफ़ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड कोरिलेशन डू नॉट चेंज बाय शिफ्ट इन टाइम, अगर कोरिलेशन एंड मीन वैल्यू आपका चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप बोल सकते हो कि दैट फंक्शन इज़ अ वाइड सेंस स्टेशनरी. सिंपल सा दो ही चीज़ है. जैसे आपने स्ट्रिक्ट सेंस के लिए क्या चेक किया कि अगर CDF आपका विद रिस्पेक्ट शिफ्ट करते हैं टाइम आप, और CDF की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो आप बोल देते हो कि दैट इज़ ए स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस. और अगर इसी तरीके से मीन और कोरिलेशन फंक्शन, अगर मीन और कोरिलेशन फंक्शन ये टाइम शिफ्ट के साथ चेंज नहीं होते हैं, तो उनको आप बोल देते हो कि दैट इज़ अ वाइड सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस. तो हमें किसी भी रैंडम प्रोसेस को अगर वाइड सेंस स्टेशनरी प्रूफ करना होगा तो हमें दो चीज़ प्रूफ करनी होगी. एक तो ये कि मीन की जो वैल्यू होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर, वो डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए डिफरेंट नहीं होगा, सेम ही होगा, डिफरेंट टाइम पर सेम ही होगा. और दूसरा प्रूफ करना होगा कि कोरिलेशन जो होगा EX ऑफ T1 x T2 इज इक्वल्स टू E ऑफ x T1 प्लस डेल्टा E x T2 प्लस डेल्टा, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे. ये चीज़ आप फाइंड कर सकते हो. तो सेम पता करना पड़ेगा आपको ये दोनों चीज़ें. या फिर आप इस तरीके से ये भी फाइंड कर सकते हो कि इफ़ x T1 T2 इक्वल्स टू RX T1 T2, जैसे आप कॉजलिटी ऑफ सिस्टम फाइंड करते हो, तो वो भी हो सकता है. दो चीज़ें आपको फाइंड करनी पड़ेंगी फॉर डिफाइनिंग रैंडम प्रोसेस. किसी भी दो मेथड से आप कर सकते हो कि ये चीज़ प्रूफ कर दो या दूसरा प्रूफ कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि तो
This is all about the stationary and ergodic random process, strict sense and wide sense. स्ट्रिक्ट सेंस को CDF के फॉर्म में डिफाइन करते हैं और वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस को मीन और कोरिलेशन के फंक्शन के फॉर्म में, ऑटो कोरिलेशन भी बोल सकते हो आप. सो देयर इज़ फ्यू एग्जांपल्स रिलेटेड विद द वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस. आप सॉल्व कर सकते हो. एक्स टी और वाई टी जॉइंटली दिए हुए हैं, जेड टी से रिस्पेक्टेड हैं. आपको फाइंड करना है कि सो दैट जेड टी इज़ अ वाइड सेंस. अगर वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर दो रैंडम प्रोसेसेस हैं इंडिविजुअली एक्स एंड टी आर वाइड सेंस, तो अगर हम उनको ऐड करते हैं देन रिजल्टेंट रैंडम प्रोसेस विल आल्सो बी अ वाइड सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस. तो हमने सिंपली प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके जेड टी को फाइंड कर लिया है. ईज़िली आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो कि जेड टी भी एक वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस होगा. सेकेंड क्वेश्चन भी वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस पे है. विद मीन म्यू एक्स इक्वल्स टू 1, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन दिया. फाइंड एक्सपेक्टेड पावर इन एक्स टी. एक्सपेक्टेड पावर कैसे फाइंड कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट द ई एक्स स्क्वायर टी दैट इज़ आर एक्स ऑफ ज़ीरो. तो हम आर एक्स ऑफ ज़ीरो को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. तो एक्सपेक्टेड पावर फाइंड कर सकते हैं, आर एम एस पावर फाइंड कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द पार्ट बी, उसको हम एक्सपेंड करेंगे. एक्सपेंड करने के बाद हम क्या करते हैं, ये देख लीजिए आप. जब आप फाइंड करते हो x1 x3, तो इन दोनों का जो 3 और 1 का डिफरेंस है वो 2 -2 है. 1 -3, 2 -3 -1, 1 -2 द T1 -T2. तो इस तरीके से अगर आप फाइंड करोगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 x2 दैट विल रिप्रेजेंट द Rx T1 minus T2. Similarly x1 and x3, then Rx एक्सपेक्टेड वैल्यू. जब हम इस चीज़ को एक्सपेंड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा. ये ऑल कन्वर्टेड इंटू 3 इंटू Rx0 और सभी वैल्यूज़ क्या होंगी, चेंज हो जाएंगे और वहाँ से हम फाइंड करके ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे. दैट इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड यूनिट along with the numerical example. The scheduled time for the assignment for this unit has been over, so I will provide the solution of the assignment for unit 2 in next 1 or 2 days. So that is it from the unit 2. Stay home, stay safe. Thank you.